কামদেবপুর যাচ্ছে আওয়াজ তো নারায়ে রিসালাত মাসলাকে আলা হযরত हकीमे मिल्लत पीरजादा बायजीद अशरफी साहेब नारे तकबीर नारे रिसालत दोनों हाथों को उठा के बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या नबी अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद जरा ऊंचा बोलो একবার বলি এবার ব্যানার লাগিয়েছেন আই লাভ আই লাভ আই লাভ হাত উঠাচ্ছেন না আই লাভ क्यों देखो आप लोग बैठिए সকলকে বলবো কেউ এরকম দাঁড়িয়ে থাকবেন না চেয়ার আছে আপনারা চেয়ারে বসে যান কেউ এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না তেলা রুহিন নবিয়্যিল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিম اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البليات ويحل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته बेस को बढ़ाइए बेस बढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وسراجنا وولاعنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك
صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين সমস্ত প্রশংসা গুণগান গুণস্থিতি গুণভাজন এক ওয়াহদাহু লা শারীকের জন্য নিবেদিত যে আল্লাহ আমাদেরকে ধরার জন্য হাত দিয়েছেন বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে আল্লাহ দেখার জন্য চোখ দিলেন, বলার জন্য জুবান দিলেন, আল্লাহর শুকরিয়া উচ্চ আওয়াজ দিয়ে আল্লাহর দেওয়া ভাষায় পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। তোমার নামে গান গাহিলে কণ্ঠে আসে সুর, আল্লাহ কণ্ঠে আসে সুর, মওলা কণ্ঠে আসে সুর। তোমার নামে আজান শুনে, তোমার নামে আজান শুনে রাত্রি যে হয় ভোর, মওলা রাত্রি যে হয় ভোর, আল্লাহ রাত্রি যে হয় ভোর। তোমার নামে গাছের ডালে, তোমার নামে গাছের ডালে পাখির কলরব, মওলা পাখির কলরব। তোমার নামে গাছের ডালে পাখির কলরব, মওলা পাখির কলরব। তোমার হাতে জীবন মরণ আনন্দ উৎসব, সবার মনে প্রশান্তি দাও, সবার মনে প্রশান্তি দাও, দুঃখ করে দূর, মওলা দুঃখ করে দূর। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দয়া করেছেন, আল্লাহর দেওয়া তার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিলে আসার তৌফিক দান করেছেন। উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে লক্ষ কোটি দরুদ শরীফ অবতীর্ণ হোক আপনার আমার নবী বিশ্বজাহানের নবী আমিনার লাল মরুর দুলাল আহমদে মুস্তাফা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ কোটি দরুদ শরীফ অবতীর্ণ হোক, যেই নবীকে আল্লাহ না পাঠালে আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করত না, জমিন সৃষ্টি করত না, লৌহ কলমকে সৃষ্টি করত না, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে সৃষ্টি করত না, আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করত না। আল্লাহ পাক দয়া করেছেন তার মাহবুবকে পাঠিয়ে, আর এই সমস্ত কিছুকে আমাদেরকে দান করেছেন সেই মহান নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ভরে মহব্বতে একবার দরুদের নাজ পেশ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোরা দরুদ সালাম পড়ি নবী তোমার শরণে, নবী তোমার শরণে, নবী তোমার শরণে। মোরা দরুদ সালাম পড়ি নবী তোমার শরণে, নবী তোমার শরণে, নবী তোমার শরণে। কঠিন দিনে জায়গা দিও তোমার চরণে, নবী তোমার চরণে। মোরা দরুদ সালাম, মোরা দরুদ সালাম পড়ি নবী তোমার শরণে, কঠিন দিনে জায়গা দিও তোমার চরণে, নবী তোমার চরণে, নবী তোমার চরণে। ওই কঠিন জাহান নাম হবে তার প্রতিহারাম, ওই কঠিন জাহান নাম হবে তার প্রতিহারাম।
দেখবে যে চেহারা তোমার দেখবে যে মুমিন মুসলমান নবী মুমিন মুসলমান আমায় একবার তুমি দাও গো দেখা দাও গো দেখা দাও গো দেখা আমার স্বপ্নে নবী আমার স্বপ্নে কঠিন দিনে জায়গা দিও তোমার চরণে নবী তোমার চরণে মোরা দরুদ সালাম আমার সাথে পড়েন না মোরা দরুদ সালাম পড়ি নবী তোমার শরণে নবী তোমার শরণে দয়াল তোমার শরণে কঠিন দিনে জায়গা দিও তোমার চরণে নবী তোমার চরণে রাগ করে আছেন আমার উপর নাকি রাগ করে নেই আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন এ महबूब व रफअना लका जिक्रक ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया बोलूं ना सुभान नबी मुस्तफार जिक्र के अल्लाह উঁচু করেছেন एक है जिक्र खुदा एक है जिक्र मुस्तफा एक जिक्र खुदा एक है जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा ये मखलूक करती है और जिक्र मुस्तफा खुद खालिक के कायनात करता है बोलो ना सुभान जिक्र खुदा जिक्र करने के लिए जाकिर की जरूरत है ना किसी फेल के लिए फाइल की जरूरत है किसी काम के लिए काम करने वाले की जरूरत है अगर ये माइक रहे और मुकर्रिर न रहे तो माइक का क्या काम तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद करते हैं और दुनिया वालों से ये ऐलान करते हैं ऐ महबूब आप फरमा दीजिए वरफ़अना लका ज़िक्रक ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया मुस्तफ़ा के जिक्र को इस तरह बुलंद किया कि मुस्तफ़ा का जिक्र अज़ान में मुस्तफ़ा का जिक्र नमाज में मुस्तफ़ा का जिक्र इबादत में मुस्तफ़ा का जिक्र रियाज़त में मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान में मुस्तफ़ा का जिक्र ज़बूर के सफ़हात में मुस्तफ़ा का जिक्र इंजिल के पारों में मुस्तफ़ा का जिक्र तौरात के औराक में मुस्तफ़ा का जिक्र ज़बूर के सफ़हात में मुस्तफ़ा का जिक्र आसमान की बुलंदी में मुस्तफ़ा का जिक्र ज़मीन की पस्ती में मुस्तफ़ा का जिक्र आसमान की बुलंदी में मुस्तफ़ा का जिक्र दुनिया के हर ज़र्रे में मुस्तफ़ा का जिक्र फरिश्तों के ज़ुबानों पर मुस्तफ़ा का जिक्र मोमिन की ज़ुबानों पर मुस्तफ़ा का जिक्र मोमिन के दिलों पर अरे मुस्तफ़ा का जिक्र दुनिया के हर ज़र्रे पर मुस्तफ़ा का जिक्र खुद खुदा करता है अल्लाह का जिक्र मखलूक करता है और मुस्तफ़ा का जिक्र खुद खालिक के कायनात करता है मुस्तफ़ा के जिक्र अरे मुस्तफ़ा का जिक्र हर जर्रे में है हर कतरे में है दरिया की रवानी में मुस्तफ़ा का जिक्र समंदर की सैलानी में मुस्तफ़ा का जिक्र मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने वालों सुन लो मुस्तफ़ा के जिक्र को नहीं मिटा सकते मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें अज़ान को मिटाना होगा मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें नमाज को मिटाना होगा मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें समंदर को मिटाना होगा मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें दरिया को मिटाना होगा मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए कुरान को मिटाना होगा मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए तुम्हें फरिश्तों को मिटाना होगा और हद तो ये है कि मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने के लिए खुद खुदा को मिटाना होगा मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा क्योंकि मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने वाले तुम खुद मिट जाओगे मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं मिटा सकते मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा
मुस्तफा के जिक्र को मिटा नहीं सकते, मुस्तफा के जिक्र को मिटा नहीं सकते, मुस्तफा के जिक्र को मिटा नहीं सकते। आज तुम कहते हो आई लव मोहम्मद न कहो, अरे आई लव मोहम्मद तो हम मरते दम तक कहेंगे, चाहे गर्दनें उड़ा दो, चाहे हमें कुर्बान कर दो, हमारी नस्लों को मिटा दो, हमारी नस्लें जब तक पैदा होती रहेंगी क़यामत तक हम मुस्तफा पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन आई लव मोहम्मद कहना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों अर्ज करूं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी जान, ये जो मेरी जान है या रसूल अल्लाह, इसके अलावा या रसूल अल्लाह मेरे माँ आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरी नस्लें आप पर कुर्बान, मेरे पास या रसूल अल्लाह जो कुछ है सब आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह। बस अपनी जान के अलावा ऐ आशिकों सुनो, ऐ आशिकों सुनो, किस तरह मुस्तफा से मोहब्बत करनी। बस ये कहने से नहीं चलेगा कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, आई लव मोहम्मद कहने से कोई आशिक नहीं बन जाता। मुस्तफा के इश्क को दिल में लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ती है, अपनी औलादों को कुर्बान करनी पड़ती है, मालो दौलत को कुर्बान करनी पड़ती है, अपनी नस्लों को कुर्बान करनी पड़ती है। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन को देखो, हजरत अली असगर को कुर्बान करते हैं, मैदान करबला में देखो हजरत अली अकबर को कुर्बान करते हैं। अरे मैदान करबला में 72 कुर्बान हो गए, इसलिए यही तो इश्क़ रसूल है, यही तो इश्क़ रसूल है। सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से कोई आशिक नहीं बन जाता। हजरत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान के अलावा मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अहलवायाल जितने भी हैं, या रसूल अल्लाह आप पर कुर्बान। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं सुनो, ऐ उमर ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता कुना हब्बा इलैका मिन नफ्सिका। ऐ उमर उस वक्त तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझ मुस्तफा से मोहब्बत न करो, तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते हैं। उस वक्त तक नहीं हो सकते। अपनी औलाद दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा जिन दो चीजों को लोग चाहते हैं, एक है दौलत और एक है औलाद। इन दो को सब चाहते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ला युमिनु, नहीं हो सकते मोमिन, नहीं हो सकते मोमिन। ऐ आशिकों सुनो, नहीं हो सकते मोमिन कब तक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक अपनी बाप से, अपने बेटे से और तमाम लोगों से मुझसे मोहब्बत ज्यादा न कर लो। ये है मोहब्बत। मोहब्बत करनी है तो इस तरह करो। किस तरह करनी है मोहब्बत? मोहब्बत करनी है अपनी जाने मुस्तफा पर कुर्बान करो, अपनी जाने मुस्तफा पर कुर्बान करो। या रसूल अल्लाह फिदा का अबी, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी, या रसूल अल्लाह फिदा का उख्ती, या रसूल अल्लाह फिदा का अखी, या रसूल अल्लाह फिदा का अली, या रसूल अल्लाह फिदा का अहली, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरी औलाद आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरी माँ आप पर कुर्बान,
या रसूल अल्लाह जरूरत पड़ी तो दुनिया की हर ताकत से हम लड़ेंगे, मगर या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। इस तरह मोहब्बत कर। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे इस नारे को लगाते रहो ताकि मरते दम पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा आए। जब तुम मरो तो सामने मुस्तफा खड़े हो। अरे दीवानो इस तरह इश्क करो, इस तरह मोहब्बत करो। जब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ तो नज़ा के वक्त मुस्तफा सामने हाजिर हो और तुम कहते रहो या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बोलो ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। पीछे वाले भी, पीछे वालों को अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं आप? पीछे वाले समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी जुबान को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? सिर्फ बांग्ला ही में बोलूं। मुस्तफा से मोहब्बत किस तरह करनी है? आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका। मैंने खुद इस कलाम को कल ही लिखा, आप लोग समाअत फरमाएं और मेरे साथ देना पड़ेगा। पीछे वाले मोहब्बत का सबूत देते हुए मेरे साथ पढ़िएगा जरूर ताकि मैं आवाज यहां से सुन पाऊं। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव मुहम्मद, आई लव मुहम्मद, आई लव मुहम्मद, आई लव मुहम्मद, आई लव यासीन, आई लव तोहा, आई लव आका, आई लव आका। आका के दीवानों का है ये नारा, आका के दीवानों का है ये नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका। आका के दीवानों का है ये नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। आका के दीवानों दिल से पुकारो आई लव यू आका। पीछे वाले भी आई लव यू आका। क्या बात है भाई, आप लोग नहीं समझ रहे हैं? जोर से बोलो आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका। दिल से आई है बस की ही सदा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। जब गम ने राहों को तन्हा किया, जब गम ने राहों को तन्हा किया, जब दर्द ने दिल से सब छीन लिया, उस वक्त सहारा बनकर तू आया। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका। जब गम ने राहों को तन्हा किया, जब दर्द ने दिल से सब छीन लिया, उस वक्त सहारा बनकर तू आया। आई लव यू आका, आई लव यू आका, आई लव यू आका। आई लव यासीन, आई लव तोहा, आई लव यासीन, आई लव तोहा, आई लव आका, आई लव यू आका। आका के दीवानों दिल से पुकारो आई लव। जब तू ना होता तो सब कुछ अधूरा, जब तू ना होता तो सब कुछ अधूरा। तेरे ही सदक़े मिला नूर पूरा।
मुस्तफ़ा के नूर के सदके में सब कुछ मिला है। मुस्तफ़ा के नूर के सदके ये ज़मी बनी, ज़मा बने, मक्की बनी, मक्का बने, चुनी बनी, चुना बने, लोह कलम अर्श फर्श ताज, सब कुछ मुस्तफ़ा के सदके, मुस्तफ़ा के सदके सब कुछ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। मुस्तफ़ा के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। मैं सोचने लगा, ऐ अल्लाह तेरे मुस्तफ़ा के नूर से तूने तमाम चीजों को पैदा फरमाया, तो ये लगता है कि आसमान और ज़मीन, लौहो कलम, चांद और सूरज, या जो कुछ तूने बनाया, ऐ अल्लाह तेरे मुस्तफ़ा के सदके है। अरे मुस्तफ़ा के सदके में तो बनी, लेकिन मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत होती गई वो ज़माने में सबसे मुमताज होता गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत होती गई वो ज़माने में सबसे मुमताज होता गया। मुस्तफ़ा से निस्बत की वजह से सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गए। मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से हज़रत उमर फारूक आज़म बन गए। मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से हज़रत उमर फारूक आज़म बन गए। हज़रत उस्मान गनी बन गए। और मुस्तफ़ा के सदके हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत अली वलियों के सरदार बन गए। और आगे चलिए तो गौसे आज़म पहले क्या थे? अब्दुल कादिर। लेकिन जब मुस्तफ़ा से निस्बत मिली तो क्या बने? गौसे आज़म बन गए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मुईनुद्दीन थे, मुस्तफ़ा से निस्बत मिली, गरीब नवाज बन गए। अरे आगे चलो, निज़ामुद्दीन औलिया को निस्बत रसूल मिली, क्या बने? निज़ामुद्दीन औलिया बन गए। और आगे चलो तो हज़रत मखदूम सिमनानी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सुल्तान का तख्त छोड़कर, सिमनान के तख्त ताज को छोड़कर बंगाल की धरती पर आए। किस लिए? मुस्तफ़ा की निस्बत ने हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को गौसुल आलम बना दिया। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरकज़हू को आला हज़रत बना दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे निस्बत मुस्तफ़ा देखिए। आगे चले आगे। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला अक्षर क्या है? मोहम्मद पहला अक्षर क्या है? एम। इंग्लिश में एम, बांग्ला में मो, और उर्दू और अरबी में मीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलसफा तो देखिए, एक बार गौर तो कीजिए, इस मीम मोहम्मद में मौत से पैदाइश से लेकर शिकमे मादर से लेकर मौत तक सब कुछ छुपी हुई। आपको मैं ले चलूं, शेर कराता चलूं। जब आप आलमे अरवाह में थे, वहां से कहां आए? शिकमे मादर में, माँ की पेट में। तो आपको माँ की ममता मिली। नोट कीजिएगा, माँ, मीम से माँ, मीम से ममता, दो। और आगे चलिए, जब आप पैदा हुए छोटा सा, बस थोड़ा बड़ा हो गए, माँ बाप ने कहा इसे पढ़ने के लिए, शुरुआत के लिए मकतब में भेजनी है। तो आगे चलिए तो मीम से मकतब, और मकतब में पढ़ाने वाले मुअल्लिम, बोलो ना,
और आगे चलिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो आपको मदरसे भेजा जाता है। मीम मोहम्मद के सदक़े मदरसा पढ़ाने वाले मुदर्रिस, और जब आप पढ़ते पढ़ते उला सानिया सालिसा राबिया खामसा करते करते आप अगर मौलाना बने तो मीम मोहम्मद के सदक़े मौलाना, आप अगर मुफ्ती बने मीम मोहम्मद के सदक़े मुफ्ती, आप अगर मुफस्सिर बने तो तफसीर कर रहे हैं कुरान की तफसीर मीम मोहम्मद के सदक़े मुफस्सिर बन गए। और आगे चलिए अगर आप तसनीफ कर रहे हैं तो मुसन्निफ बन गए, आगे चलिए तो आप तकरीर कर रहे हैं तो मुकर्रिर बन गए। एक से एक लक़ब मीम मोहम्मद के सदक़े आपको मिलता गया। आगे चलिए मीम मोहम्मद के सदक़े बहुत कुछ मिलने वाला है। गांव में बहुत सारे घर है ना, कितने घर हैं गांव में? लगभग कितने घर हैं? 200 घर हैं, एक अंदाजे के तौर पर पकड़ लीजिए 200 घर हैं। 200 घर है। आप इस 200 घर में एक बाहरी कोई मुसलमान यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर वो कुछ खोज रहा है, क्या इबादत इलाही के लिए, इस पूरे गांव में हर घर में जाकर देखेगा? नहीं देखेगा, मस्जिद खोजेगा, है ना? तो मस्जिद को खोजने के लिए, मस्जिद की पहचान के लिए जो मीनार बनी है वो भी मीम मोहम्मद के सदक़े। और आगे चलिए ये मस्जिद तो मीम मोहम्मद के सदक़े है। और आगे चलिए मस्जिद के अंदर आप जाएंगे तो जहां पर इमाम खुतबा दे उसे क्या कहते हैं? मिंबर कहते हैं। अच्छा, जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बोलो ना, मुक्तदी। मीम मोहम्मद के सदक़े मुक्तदी बने। और आगे जो नमाज पढ़ाते हैं मीम मोहम्मद के सदक़े उसे मुक्तदा कहा जाता है। और आगे चले नमाज जहां खड़े होकर पढ़ते हैं उसे मुसल्ला कहा जाता है, ये भी मीम मोहम्मद के सदक़े। और आगे चले मीम मोहम्मद के सदक़े आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और आगे चले तो आप मैं दिखाऊं आज साइंस जो है, साइंसदान कहते हैं हमने कामयाबी अख्तियार की। मैंने कहा भाई क्या कामयाबी अख्तियार की तुमने? तो कहा कि मीम मोहम्मद के सदक़े नहीं, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। देखो हमने हवाई जहाज बनाई, प्लेन बनाई और क्या क्या बनाई, और 1 सेकंड में यहाँ से सऊदिया अरेबिया तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक छोटी चीज बनाई, फोन, स्मार्टफोन। इसे मीम मोहम्मद के सदक़े मोबाइल कहते हैं। और इसमें अगर सारी दुनिया की चीजों को रखनी है तो मीम मोहम्मद के सदक़े मेमोरी कहते हैं। और आगे चलिए ना, ये माइक जो है, माइक्रोफोन, ये भी मीम मोहम्मद के सदक़े। मॉनिटर मीम मोहम्मद के सदक़े। ऑपरेटर मॉनिटर चला रहे हैं, उनसे पूछिए क्या है तो मॉनिटर है, मीम मोहम्मद के सदक़े। अरे मीम मोहम्मद के सदक़े आगे चलिए तो मीम मोहम्मद के सदक़े आपको मरने के वक्त मीम मोहम्मद के सदक़े मौत आएगी। मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अगर आप देखेंगे दुनिया की हर जर्रे को, दुनिया के हर कतरे को, दुनिया के हर जर्रे को आप अगर निखार के देखें
देखिएगा तो मीम मोहम्मद के सदके में है। आप पैदा होते हैं मीम मोहम्मद के सदके, माँ की ममता मिलती है मीम मोहम्मद के सदके, आपको मदरसा मीम मोहम्मद के सदके, आपको मस्जिद मीम मोहम्मद के सदके, आपको दुनिया की हर जर्रे मिलते हैं, हर कतरे मिलते हैं मीम मोहम्मद के सदके। आप जन्म लेते हैं और मीम मोहम्मद के सदके आप मरते भी हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मीम मोहम्मद के सदके हर जर्रा है, इसलिए दिल में इश्क़े मोहम्मद को पैदा कर लो ताकि मरते मरते मोहम्मद के चेहरे को देखते रहो और मर के भी कब्र में मोहम्मद को देखो। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक शर्त अव्वल है, अगर इसमें हुआ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जब तक दिल में इश्क़े मोहम्मद न हो तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। आज मोहब्बत किस तरह करते हो, किस तरह करते हो मोहब्बत? दुनिया की दिखावा, आई लव मोहम्मद, बस वायरल होने के लिए। मेरे दोस्तों, मैं तो बहुत खुश हुआ यहाँ आके। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे मौलाना रबीउल इस्लाम साहब हैं, और यहाँ के जितने भी कमेटी के लोग हैं, इन लोगों ने एक बहुत बेहतरीन एक इंतजाम किया है कि हर सीने में आई लव मोहम्मद लगा हुआ है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और मेरे सीने में किसी ने आके लगाया, मौलाना साहब लगाया, आप लगाया आई लव मोहम्मद, मेरे सीने में भी लगाया। लेकिन ये लगाने से इश्क़ रसूल साबित क्या नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, अगर इश्क़ रसूल दिल में लानी है तो फिर सुन्नत नबवी को अपने अंदर लाओ। अगर तुम चाहते हो कि आई लव मोहम्मद का मानी असल में तुम्हें समझ में आए तो फिर दाढ़ियों को छोड़ो, नमाजों को कायम करो, रोजे रखो और ज़कात दो, अपनी तमाम उन कामों को करो जिनसे मुस्तफ़ा खुश होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरे दोस्तों, अगर मेराज करना चाहते हो तो नमाज कायम करो। मैं एक छोटी सी जुमला कह के आगे गुजर जाता हूँ। लोग आज कहते हैं हम कामयाब कैसे होंगे, लोग कहते हैं हम कामयाब कैसे होंगे। कामयाबी के लिए हम नौकरी करते हैं, कामयाबी के लिए खेती बाड़ी करते हैं, कामयाबी के लिए हम तरह तरह के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके बहुत सारे हम मुशक्कत करते हैं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। मैं कामयाबी की राज आपको बताता हूँ, आप सुनना चाहेंगे? कौन कामयाब होना चाहते हैं? हाथ उठाकर दिखाए। सब कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब होने का फलसफा बताता हूँ मेरे दोस्तों। कामयाब हो जाओगे, लेकिन कामयाब होने के लिए तुम्हें छोटी सी काम करनी होगी जिससे तुम हर मकाम पर कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मुसीबत ज़दा हो तो कामयाब हो, मुसीबत से छुटकारा पाओगे। अगर तुम बीमार हो शिफा पा जाओगे। अगर तुम किसी मुसीबत में हो, मुसीबत में से छुटकारा मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए बस एक काम करो, तुम कामयाब हो जाओगे। वो क्या है मेरे दोस्तों? मेरे दोस्तों, बाबा जी पहले बोल चुके, लेकिन मैं बात को मुकम्मल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपके मुअज्जिन साहब यहाँ जो है नहीं है, यहाँ पर शायद पांचों वक्त आपको बुला बुला कर कह रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कामयाबी चाहते हो, ये मुअज्जिन नहीं कह रहा, ये अजान पुकारने वाला नहीं कह रहा,
कौन कह रहा है? अजान पुकारने वाला पांचों वक्त आपको पुकार पुकार कर तो कह रहा है, लेकिन अजान पुकारने वाला नहीं कह रहा, बल्कि रब्बे काबा, रब्बे मुस्तफा पुकार कर कह रहा है, ऐ मेरे बंदों, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाज में आ जाओ, सलात कायम करो। अगर कामयाबी चाहते हो, मुसीबत से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम परेशानियों से छुटकारा चाहते हो, अगर तुम गरीबी में मुब्तला हो, अगर तुम परेशान हो, ऐ मेरे बंदो कामयाब होना चाहते हो, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। हाय अफसोस, हाय अफसोस, हमें अल्लाह रब्बे काबा, रब्बे मुस्तफा पांचों मर्तबा बुला बुला कर कामयाबी की तरफ बुला रहा है, लेकिन हम खेती बाड़ी में लगे हैं, इसलिए कि हम अगर खेती बाड़ी करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, हम अगर बिजनेस करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, हमें दौलत मिलेगी। ऐ दोस्तों, ये दुनिया की दौलत का नाम कामयाबी नहीं, कामयाबी तो वो है जो कब्र में जाके तुम्हारी काम आए। बोलो ना सुभान। अभी एक वक्त भी नहीं है, एक लम्हा भी आप यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए अज़राइल जाओ, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल सत्तार, इस बंदे को लेकर आओ, तो आप कामयाबी, जिस दौलत को कह रहे हैं वो कामयाबी आपके बाल बच्चे लूट कर खा जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, इस दौलत के लिए, इस दुनिया की ऐशो इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को, अपनी आखिरत को बर्बाद न करना, नहीं तो पछताते रहोगे। और क़यामत के रोज अगर मुस्तफा ने तुमको बुलाकर कहा, तुम तो कहते थे आई लव मोहम्मद, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, तुम मेरी सुन्नतों को अदा नहीं करते थे, तो क्या करोगे? ऐ आशिकाने रसूल, ऐ मुस्तफा के आशिकों, तो फिर रुस्वा होने की उन कामों को न करना जिनसे तुम रुस्वा हो जाओगे, जिनसे तुम रुस्वा हो जाओगे। आओ मुस्तफा की सुन्नतों पर अपनी जिंदगी को बसर करो। आइए चंद अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। हस्बे मामूल कभी कभार मैं ना तो मनकबत पढ़ता रहता हूँ, आप लोग सुनेंगे ना? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाइए। नहीं सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, आइए, मैं हर जगह इन अशआर को पढ़ता हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों को इंशाअल्लाह पसंद आएगा। आइए, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी
তোমার ওই চেহারা ইয়াসিন ও কুরআন তুমি রূপের রাজ তুমি জানের জান তোমার ওই চেহারা ইয়াসিন ও কুরআন হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা তোমারি সমান तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा शोबार शुरू हो ये एले शोबार शेष शोबार शुरू हो ये एले शोबार पर पेले अपरूप অপূর্ব সুন্দর হতে পারেনি কেউ তো হবে না হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা তোমারি সমান তু শায়ে খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाली तेरी जवाब तेरा अल्लाह पाक নিজের মেহবুবের জিকির को बुलंद করেছেন কোন নবীর কথা বলছেন আরে কোন নবীর জন্য এই দুনিয়া এই জমিন এই আসমান চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র আপনি আমি ওই নবী যেই নবীকে আজ কিছু লোক বড় ভাইয়ের মতো বলে তাদেরকে বলি যেই নবীকে বড় ভাইয়ের মতো বলো কান খুলে শুনে রাখো ওই নবী যেই নবী উঙ্গলির ইশারা করলে আঙ্গুলের ইশারা করলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয় সেই নবী আমার মতো না হতে পারে না যেই নবীর ইশারাতে আপনার সূর্য আসরের সময়ে ফিরে আসে সেই নবী আমার মতো আপনার মতো বড় ভাইয়ের মতো হতে পারে না আপনার আমার নবী যেই নবী উঙ্গলির ইশারাতে আপনার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয় চন্দ্র আপনার সূর্য ফিরে আসে যেই নবীর উঙ্গলি দিয়ে ফোয়ারা বের হয় পানির ফোয়ারা বের হয় যেই নবী আপনার রাত্রি বের হলে অন্ধকার রাত্রিতে আলোয় আলোকিত হয়ে যায় সেই নবী আপনার আমার মতো হবে এটা কি করে হতে পারে এদের ব্রেনকে আল্লাহ থপ মেরে দিয়েছে সুম্মুন বুকমুন উময়ুন ফাহুম লা ইয়ারজিউন এদের অন্তরকে আল্লাহ সিল মেরে দিয়েছে মোহর মেরে দিয়েছে এদের অন্তর লেগে গেছে এরা দেখেও দেখে না শুনেও শুনে না আবু জাহিল নবীকে দেখেছে নবীকে গিয়ে বলছে ও আমার ভাতিজা আমার হাতে কি বলে চাচা আমি যদি বলে দেই তুমি কি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে
বলে ভাতিজা তুমি বলো, আমি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। আবু জাহিল বলছে, নবী আমার বলছেন চাচা আমি বলবো না তোমার হাতে যেই জিনিসটা আছে সে আমার কথা বলবে, তুমি বলো। আবু জাহিল বলল, এ তো আরো ভালো কথা, আমার হাতের জিনিস যদি তোমার কথা বলে তাহলে তো আমি একেবারেই বিশ্বাস করব, কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। এবার আবু জাহিলের ওই হাতের ভিতরের পাথরগুলো বলছে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আবু জাহিল যার দিলে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে সে বলছে, ভাতিজা তুমি এত বড় জাদুকর যে তোমার আমার হাতের পাথরও তোমার কথা বলে। নাউজুবিল্লাহ। বন্ধু আমার বাবারা, ওই মুহাম্মদ যেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার আমার জন্য বুকে পাথর বেঁধেছেন, আপনার পেটে অনাহারের মধ্যে কাতর, কিন্তু নবী আমার আপনার আমার জন্য পেটে পাথর বেঁধেছেন। নবী আমার যদি চাইতেন আপনার স্বর্ণ অলংকার সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারতেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাদশাকে নবী মুস্তাফা করতে পারতেন, কিন্তু না 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 না, নবী আমার আপনার আমার জন্য এই দুনিয়াতে এসেছেন শুধুমাত্র আপনার আমার হিদায়াতের জন্য। ও আমার মায়েরা, যেমন আমার নবী আপনার আমার জন্য নিজের কষ্ট সহ্য করেছেন তায়েফের মরুভূমিতে, যেই মরুভূমিতে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতুল মুকাররমা থেকে মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে যখন গেলেন, মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে যাওয়ার আগে নবী আমার মক্কাতুল মুকাররমাতে অত্যাচারিত করেন, নবীর উপরে পাথর নিক্ষেপ করা হতো। নবী আমার যখন কাবা শরীফে নামাজ আদায় করতেন, কাফেররা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নারী ভুঁড়িগুলো চাপিয়ে দিতেন, নবী আমার সহ্য করতেন। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুও বদদুয়া করে নাই। যখন দেখলেন আপনার মক্কার কাফেররা শুধরায় না, তিনি চিন্তা করলেন এবার আমি তায়েফের মরুভূমির দিকে যাই। তায়েফের মরুভূমির দিকে যখন আপনার আমার নবী রওনা দিলেন, তায়েফের দিকে যাওয়ার আগে আগে মক্কার কাফেররা এই খবরটি তায়েফের নেতা মাতাদেরকে দিয়ে দিলেন, ও তায়েফের নেতা মাতারা, মুহাম্মদ নামে একজন পাগল তোমাদের তায়েফে আসবে, যে কিনা আমাদের পৌত্তলিক পূজাকে খারাপ বলবে, এক আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলবে, নিজেকে মুহাম্মদ রাসূল হিসাবে দাবি করবে, তোমরা সেই পাগলের কথায় কান দিবা না। নবী আমার মক্কাতুল মুকাররমাতে থেকে মদিনাতুল মুনাওয়ারার দিকে যাচ্ছেন, তায়েফের দিকে যাচ্ছেন। যখন তায়েফে প্রবেশ করলেন, তায়েফের লোকেদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, ও তায়েফের লোকেরা, ও তায়েফের লোকেরা, তোমরা যেই পৌত্তলিক পূজা করো এটা মিথ্যা, এক আল্লাহর ইবাদত করো যেই আল্লাহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্য নিয়ে আসেন, যেই আল্লাহ চন্দ্র উদিত করেন, যেই আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছে, যেই আল্লাহ আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছে, যেই আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছে। এই তায়েফের লোকেরা, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, আমার সাথে একবার পড়ে নাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে তোমরা আমাকে নবী বলে মেনে নাও। আমি কিয়ামতের দিনে কবরে হাসরে মিজানি পুলসিরাতে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের শাফাআত করে দেব। কিন্তু আগে থেকেই মক্কার লোকেরা তায়েফের বাসীদেরকে জানিয়ে দিয়েছিল, ও তায়েফের লোকেরা, ও তায়েফের লোকেরা, মুহাম্মদ পাগল তোমাদের তায়েফে আসবে। এজন্য এবার তায়েফের নেতা মাথাদের মাথায় ওই ভাইরাস
ভাইরাস ঢুকেছে কিনা? এই ভাইরাস ঢুকে গেছে। তায়েফের লোকেরা এবার খবরটা পেয়ে ছোট্ট ছোট্ট বদমাইশ দুষ্টু বাচ্চাদেরকে তৈরি করে রেখেছে। যখন মুহাম্মদ তায়েফে আপনার এক আল্লাহর উপাসনা করার দাওয়াত দিয়ে, কালেমার দাওয়াত দিয়ে যখন ফেরত হয়ে চলে যাবে, তখন তোমরা মুহাম্মদের উপরে পাথর নিক্ষেপ করবে। ও আমার দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো, আপনার আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মায়ার নবী আমার তায়েফে যখন কলেমার দাওয়াত দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি বদন মোবারকে দুষ্টু বাচ্চারা, দুষ্টু ছেলেরা পাথরের নিক্ষেপ করছিল। সেই পাথরের নিক্ষেপে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করলো। আসমান কাঁদে, জমিন কাঁদে, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র কাঁদে। হযরতে জিবরিল আর থাকতে পারলেন না, আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, আল্লাহ যেই নবীর জন্য আসমানকে সৃষ্টি করেছো, জমিনকে সৃষ্টি করেছো, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছো, ওগো আল্লাহ সেই নবীর উপরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সেই নবী মুস্তাফার শরীর মুবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, এটা তো আমি জিবরিল সহ্য করতে পারি না। আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন। আল্লাহ বললেন, জিবরিল একটু ক্ষান্ত হও, যাও যাও আমার মাহবুবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, আমার মাহবুব যদি চায় এর বদলা আমি তায়েফবাসীকে দিয়ে দেব। হযরতে জিবরিল আমিন নবী মুস্তাফার দরবারে আসেন। নবী মুস্তাফার দরবারে এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মায়ার নবী, দয়ার নবী, তায়েফের লোকেরা আপনার উপরে অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, নির্যাতন করেছে, নিষ্পীড়ন করেছে। ওগো নবী, আপনি যদি একটুখানি ইশারা দিয়ে দেন, আমি জিবরিল দুইটি পাহাড় এনে এই তায়েফবাসীকে ধূলিসাৎ করে দে। আপনার আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবী আমার ডেকে বলেছিলেন, জিবরিল না রে না না না, আল্লাহ আমাকে রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছেন রে জিবরিল। জিবরিল ওরে জিবরিল, ওরে জিবরিল, আমাকে রাহমাতুল লিল আলামিন করে পাঠিয়েছেন, আমি নবী এই তায়েফবাসীর জন্য কিভাবে বদদোয়া করতে পারি? না 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 রে জিবরিল, আমি বদদোয়া করতে পারি না, তুমি ফেরত যাও, বরং আল্লাহর দরবারে দোয়া করো, আল্লাহ যেন তায়েফবাসীকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহর নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়ার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হাত দুখানি তুলে আল্লাহর দরবারে আরজ করছেন, ওগো আল্লাহ, তায়েফের লোকেরা আমাকে চিনে না, আমাকে আমি যে নবী তারা এই কথা জানে না, তারা এই কথা বুঝতে পারে নাই। ওগো আল্লাহ, তায়েফের লোকেদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও, তারা চিনে নাই, তারা বুঝে নাই। আল্লাহ গো, যারা আজকে আমার উপরে অত্যাচার করেছে, যারা জুলুম করেছে, নির্যাতন করেছে, নিপীড়ন করেছে, নিষ্পেষণ করেছে, ওগো আল্লাহ, এদের মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর, তুমি এদের মধ্য থেকে কালেমার পতাকাধারী তৈরি করো। নবী আমার কত কষ্ট সহ্য করলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র তাদের জন্য বদদুয়া করলেন না। আল্লাহ আল্লাহ, সেই নবীকে আমার মতো বলো, তোমাদের লজ্জা করে না? রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে লোটা বালতি নিয়ে বেড়ালেন, শুধু আশিকে রাসূল হওয়া যায় না, আশিকে রাসূল হওয়া যায় না। কালেমার দাওয়াত ঘরে ঘরে দিলেই শুধু আর আশিকে রাসূল হওয়া যায় না। কালেমার দাওয়াত দিতে হলে যাদেরকে দেওয়ার দরকার তাদেরকে দাও, মুসলমানের ঘরে গিয়ে কালেমার দাওয়াত দাও। এই কি তোমার কালেমার দাওয়াত? কালেমার দাওয়াত দিতে হলে সেখানে যাও যেখানে কালেমার দাওয়াত দেওয়া দরকার। এরা কলেমার দাওয়াত দেয়। মুসলমান
নবী আমার আপনার আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছেন। মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কত কষ্ট করেছেন নবী মুস্তাফার সাথে। এ মায়েরা কত কষ্ট করেছেন। আসুন একটুখানি মা খাদিজাতুল কুবরার কথা বলি। আসুন দরুদ শরীফ পড়ি, তারপরে আলোচনা যাচ্ছে। আল্লাহ ঠান্ডা পানি। مولانا محمد بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। গারে হেরার নাম শুনেছেন।